شرکت کیے. آفیشیلز ٹیم سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, میڈیا سے ہیں. یا اللہ اس کا ثواب جتنے بھی زلزلہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو اتنی بڑی فنڈنگ ہونے کے باوجود اتنے سال گزر گئے, 4 حکومتیں گزر گئیں, تو کیا اتنا بڑا ایشو تھا کہ یہ ابھی تک حل ہونے کے قریب نہیں تک پہنچا؟ بالکل بڑا ایشو نہیں ہے. اسلام آباد دیکھیں, جو 2005 میں اسلام آباد تھا وہ چھوٹا سا شہر تھا, اب وہ اتنا پھیل گیا ہے. اور جو سوسائٹیز بن رہی ہیں وہاں پر سڑکیں بھی دی جا رہی ہیں, نیا ایئرپورٹ بن چکا ہے, تو بکریال کیوں نہیں بن سکتا؟ تو یہ کچھ سیاست ہے اس میں. گورنمنٹ نے خرید لی ہے, اس کے لیے پیسے دے چکی ہے, تو آگے بڑھنا چاہیے اس کے لیے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ بالا کوٹ کے شہریوں کو بھی یہ بجائے یہ کہ ہم صرف برسی بنائیں, جو کہ بہت اہم ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کمیٹی بننی چاہیے جو مسلسل حکومت کے اوپر دباؤ رکھے, جو اس کی الاٹمنٹ ہے وہ شروع کریں سب سے پہلے, اور اس مسئلے کو حل کر کے الاٹمنٹ کریں, اور پھر لوگوں کو قرضے دیں اور لوگ اپنے گھر بنائیں. خان صاحب کا یہ بھی ہے کہ ہم نے اتنے گھر بنانے ہیں, تو یہ بکریال اگر بن جائے گا تو یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. خان میں سب کا کونسلر ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک 16 سال گزرنے کے باوجود آج تک وہیں پہ رکے ہوئے جہاں پہ تھا. چند دن قبل ڈی سی مانسہرہ اور ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی, لیکن آئی ایم سوری ٹو سے کہ انہوں نے اب کیا کہا ہے جی ابھی اس کو پبلک پارٹنرشپ کے تحت بنائیں گے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو 600 ارب روپے ہمارے تھے, جو اپنے خیرات ملی تھی, جو ہمیں ڈونرز نے دیا تھا, وہ 600 ارب روپے کا حساب نہیں لیتے, اور ابھی نئے سلے سے یہ پبلک پارٹنرشپ انویسٹر کو دے کر اس کے کہتے ہیں کہ وہ اپنی سوسائٹی بھی بنائے گا, کمرشل ایریا بھی بنائے گا, اور آپ کو پلاٹ ٹھیک کر کے دے گا. ایم پی اے گزرے ہیں, یہ سارے اب بھی اقتدار میں ہیں, لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہمارے لیے. اب اس کا ایک ہی حل ہے, اب یہ کہتے ہیں کہ ڈیڈ لائن 15, یہ جھوٹ ہے. اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ تمام لوگ اپنے بوری بسترا اور شیلٹروں سے اپنے بچوں کو لے کر اس روڈ پہ آ جائیں اور ایسا احتجاج کریں تاکہ اس ایم این اے اور اس نے ہمارا ایم پی اے اور ایم این اے کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ احتجاج میں شریک ہو جاؤں گا. افسوس, آپ کا حق تو ہے احتجاج کو روکنا, آپ اس آدمی کو لائیں جو یہ ہمارے مطالبات پوری کرے. اس کا کیا ہے کہ میں نے اور ایم پی اے ہمارا احتجاج روکے؟ سر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری اسپتال, ہمارے اسکول, اس بالا کوٹ کو ہی بحال کیا جائے, وہی بہتر ہے. نہ ہمیں یہ لوگ بکریال دے سکتے ہیں, یا انہوں نے 16 میں ساتھ دیا ہے, اب یہ کہتے ہیں جی کہ پبلک پارٹنرشپ پہ بنائیں گے. 128 دن کا دھرنا اگر ہم ڈی چوک پہ دے سکتے ہیں تو 128 دن کا دھرنا ہم بالا کوٹ کے ان روڈوں پہ بھی دے سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے ساتھ آ کر یہاں پہ روڈوں پہ بیٹھیں گے, اور یہ تمام نوجوان اتحاد انہوں نے 15 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, اور 15 تاریخ تک ہمارے مطالبات اگر حل ہو گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم خیمہ بستیاں اپنے روڈوں پہ لگائیں گے. اور 128 دن اگر تحریک انصاف کا سینئر ورکر ہونے کے ناطے ہم ڈی چوک میں اگر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے حق کے لیے بالا کوٹ کے روڈوں پہ اپنی خیمہ بستیاں بھی لگا سکتے. 8 اکتوبر زلزلہ آیا تھا, کیونکہ زلزلہ تو ایک ہنگامی صورت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے, مگر افسوس ہوتا ہے ہمیں اپنے آپ پر, سب سے پہلے اپنے آپ پر, اس کے بعد ہماری گورنمنٹ پر, کہ جس گورنمنٹ نے آج تک اس کا کوئی حل نہیں نکالا. بھی حل نہ نکالنے کا مطلب یہی نہیں کہ آپ نے صرف بکریال سٹی میں پلاٹ نہیں دیے, بلکہ گورنمنٹ نے یہاں تک کوئی قرضہ تک نہیں دیا. اگر کوئی یہاں پہ سپورٹ ملی ہے بالا کوٹ کے لوگوں کو تو وہ باہر کے ممالک سے ملی ہے, انہوں نے پھر سپورٹ کیا. امریکہ کو ہم کہتے ہیں, یو ایس ایس آر کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن دیا. ہماری گورنمنٹ کی جو پاکستان کی ذمہ داری تھی وہ صرف یہی تھی کہ یہاں ہمیں مکان بنا کے دیتے. تو افسوس کی بات ہے کہ نہ مکان بنانے دیے, ابھی جو لوگ ریڈ زون میں بناتے ہیں تو ان کو منع کر دیتے ہیں کہ یہ ریڈ زون ہے, مگر ریڈ زون میں نہ ہی پلاٹ دیے گئے اور نہ ہی مکان دیے گئے اور نہ ہی کوئی ایسی اسکیم لانچ کی گئی جس سے یہاں کے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. امیدوں کا شیر بالا کوٹ بے یار و مددگار ہے کیا؟ جی 2005 کے ضلع میں جو یہاں پہ طوفان برپا ہوا ہے, بالا کوٹ شہر صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا. آپ کس علاقے سے؟ میں مانڈری, جرید مانڈری سے ہوں. میں کوئی نقصان ہوا تھا جو زلزلہ ہوا تھا؟ جی ہمارے ارد جو ہے 54 آدمی فوت ہوئے تھے اس وقت, اور مکان ایک بھی نہیں بچا تھا. بڑی دکھ کی بات ہے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی آواز اعلیٰ حکام تک ضرور پہنچے گی انشاءاللہ. جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. امی آپ جی کس جگہ سے تعلق ہے؟ پودنا بیلا جی, یہ 7 مالا ہے.
2005 का तो जलजला आपको याद होगा। बेशक जी, मैं इधर ही खड़ा था पक्के पुल पे, जो पुल पे ही, मैं छोटा सा था उस वक्त। आपका कोई घर में जानी या माली नुकसान? हाँ जी, 5 बंदे हमारे घर में। क्या हुकूमत ने आपके काम करवाए हैं? आपको जो हुकूक थे वो आपको मिले हैं हुकूमत की तरफ से? बस ऐसे ही मिले हैं भाई, अभी तक हमारा हुकूमत के साथ मसले ही चल रहे हैं, यही बकरियाल वाला, क्योंकि अभी हमारे रेड जोन किए हुए इलाके को, ना रहने की जगह, ना पक्का उस तरह मकान है, कच्चे मकानों में गुजारा करते हैं अभी तक। 2005 8 अक्टूबर पाकिस्तानी तारीख का बालाकोट की तारीख का स्याह तरीन दिन था जब सफ़ाए हस्ती से मिट सा गया था बालाकोट। क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या आपके मसाइल हल हुए अभी तक हुकूमती सतह पे? मसाल है उधर ही पड़े मकामी आप मकामी किस जगह से ताल्लुक है आपका? ये गलाट से है हमारा तलक। जो जलजला हुआ था उसमें आपका कोई जानी माली नुकसान हुआ था? जलजले में जानी नुकसान भी बहुत हुआ है, माली भी बहुत हुआ है। आपको जो हुकूक थे आपके वो मिले? हुकूमत की तरफ से जो ऐलान हुआ था, गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था कि आपके जो मसाइल हैं हम हल करेंगे, 16 साल गुजरने के बाद क्या आपके मसाइल अभी तक हल हुए हैं या नहीं? ओ जो गवर्नमेंट ने तो अपने पास से कुछ देना ही नहीं था, वो जो बैरूनी इमदाद आई हुई थी वो तकरीबन वो बकरियाल सिटी के मामले में, तो वो अभी तक हल नहीं हुए, वो कुछ भी उस पर काम नहीं हुआ है अभी तक, वो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। हम भी हड़तालें कर कर के थक गए हैं। हर साल 8 अक्टूबर को कुछ न कुछ प्रोग्राम करते थे, इस मरतबा वो भी नहीं किया है। नौजवान इत्तेहाद पावर के साथ खड़े हैं जो प्रोटेस्ट करने जा रही है 15 अक्टूबर को अगर मसाइल हल नहीं होते। इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से उनके साथ होंगे और एहतजाज भी करेंगे। ये 15 अक्टूबर तक इन्होंने हमसे वक्त मांगा हुआ है, क्योंकि 16 साल से ये हम लोगों को टरखा रहे हैं, दे तो कुछ रहे नहीं हैं ये, और बस वक्त ही दे रहे हैं, और ख़ुद तो सारे पैसे खा पी के उड़ा लिए। सारे टूट गए हमारे, कुछ भी यहाँ नहीं रहा। अभी हमने नए से मतलब वही क्षेत्रों में हम रह रहे हैं अभी तक 16 साल, अभी क्षेत्रों में। हाँ जी, कोई मसाइल आपके हल नहीं? कोई मसाइल नहीं हल हुआ है, न प्लाट मिले हमें, न और कोई बकरियाल सिटी का लॉलीपॉप ही दे रहे हैं। 16 साल से हाल नहीं हुआ। इंशाल्लाह मंसेरा न्यूज़ आपकी आवाज़ बनेगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक। नहीं हुए, हमारी हॉस्पिटल इस तरह है, हमारे स्कूल का निज़ाम इस तरह है, और शटर का बकरियाल का मसला इस तरह है, कोई मसला हल नहीं हुआ। आप क्या करना चाहेंगे अगर ये गरीबों को क्या प्लान होगा? जो हमारे सियासी लीडर हैं वो कोई नहीं करते, हम क्या करेंगे? अब 15 अक्टूबर को नौजवान इत्तेहाद पावर एक प्रोटेस्ट करने जा रही है, क्या आप उसके साथ खड़े? हम उसके साथ हैं, भरपूर कोशिश करेंगे, आप हर तरह उनके साथ हैं, हर तरह। 2005 के जलजले में जो आपके नुकसानात हुए उनका ज़ाला हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजाले की बात इस तरह की है कि भाई मरने वाले तो मर गए हैं, शेल्टर दिए गए थे सऊदी हुकूमत की तरफ से, वो भी हमारे बोसीता हो गए हैं। हमारे जितने भाई हमारे बच्चे उनमें रहते हैं, अभी वो रहने के काबिल नहीं है। अगर वो 2 फैमिलियाँ थी, अभी 4 फैमिली हो गई हैं, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अल्लाह देख रहा है कि भाई गरीब कौम है, गरीब लोग हैं, ख़ासतौर बालाकोट के लोग तो बड़े आजिज़ और बड़े मुखलस से लोग हैं। वो दिन को कमाई करते हैं, अपना हाथ पैर से अपना काम करते हैं, अपनी दिहाड़ी लगाते हैं 200-400-500 रुपए की, वो दिन को काम करके अपने बच्चों को खिलाते हैं। उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि भाई वो किसी जगह पे जगह ले सकते हैं, अपना घर बना सकें। या ईरान में इन्होंने 10 मिनट पहले ऑपरेशन शुरू किया और 10 मिनट में लोगों के करोड़ों रुपए की चीज़ें तबाह कर दी हैं। तो भाई वो जगह उस वक्त डोनर ने दी है, ना पाकिस्तान हुकूमत की है, ना किसी की है। हमारे लिए रिलीफ आया था, हमारा हक था, तो उन्होंने वहाँ पे पैसे ज़ाया करके लोगों को उनको मुआवजे दे के बकरियाल में, और उनसे कब्जा नहीं ले सकते। ये तो हो ही नहीं सकता। किसी जाति की है उनके साथ भी यही ज्यादती होगी, और अल्लाह पाक देख रहा है। हमारी माएँ बहनें उनको बदुआएं दे रही हैं और देती रहेंगी अल्लाह के हुक्म से। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क़यामत का मंजर था उस वक्त। आपके घर में क्या नुकसानात हुए हैं जानी? घर भी गिर गया, 2-3 मातमे भी हो गए, और मरने वालों की उसके बाद कुछ भी नहीं किया। नहीं जी, कुछ भी नहीं हुआ ना होने के बराबर, आटे में नमक के बराबर भी नहीं किया। आपको तो मालूम ही है, खैर हर आदमी जानता है, कुछ भी नहीं किया। बालाकोट सिटी का वो जब कोई इलेक्शन का ज़माना आता है तो सब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब उसका ज़माना ख़त्म हो जाता है तो बात वहाँ की वहाँ ही रह जाती है। क़यामत सुगरा का मंजर था बालाकोट सिटी 5 में 8 अक्टूबर को जी। क्या कहना चाहेंगे कि आपके मसाइल अभी तक हल हुए हैं? नहीं है जी, कुछ भी नहीं है, बस जहाँ है वहाँ ही खड़े हैं। आप मकामी हैं यहाँ? मकामी हैं। कौन सा गाँव है सर? ये गल्लाट। अच्छा, तो शटल दिए थे वो भी ख़त्म हो गए, जल गए, सब ख़त्म हो गए। आपको क्या यकीन दहानी कराई थी जब शटर दिए थे? बार बार कह रहे हैं देंगे सब कुछ, बकरियाल देंगे,
16 अक्टूबर की डेडलाइन है, नौजवान इत्तेहाद पावर प्रोटेस्ट करने जा रही है, क्या आप उसके साथ खड़े हैं? बिल्कुल जी, हम तो हर काम के लिए हाजिर हैं, अपने मसाइल के लिए जो भी होगा हम हाजिर हैं। हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? यही कि वो अल्लाह का खौफ करे, बस और क्या दें। बस अभी हम तो एहतजाज ही करेंगे यार जी, गरीबी भी है, इमरान खान साहब आ गए हैं तो इस वजह से जो है ना बहुत मतलब महंगाई भी है, गरीब बंदे का गुजर बसर बहुत मुश्किल है इस टाइम पे जी। गवर्नमेंट की जानब से तो थोड़ा बहुत जो कुछ मिला था, लेकिन जिस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए थी, आप देख सकते हैं कि आप हर जगह शेल्टर नुमा चादरें हो, ये आपको नजर आएंगी। आप ये देख सकते हैं कि ये 8 अक्टूबर 2005 क़यामत सुगरा का मंजर था बालाकोट में, सफ़ा हस्ती से मिट गया था। जो है अभी तक आंखों के सामने है। 8 अक्टूबर 2005 का जो ज़लज़ला आया था तो मैं सोया हुआ था घर में, रमज़ान था, तो नहीं भूल सकते कभी भी उसको। क्या आपके मसाइल अभी तक हल हुए हैं जो हुकूमती दावे थे कि वो अधूरे हैं अभी तक? सर सबसे बड़ा बहुत मसाइल है, लेकिन बड़ा मसला हॉस्पिटल का भी है। कल परसों भी एक बच्चे को इधर हार्ट अटैक हुआ तो हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं था। 16 साल गुजरने के बाद भी वही लोग काबिज हैं, और एरा वाले और पैरा वाले और दूसरे तीसरे खा पी के वो चले गए और हम लोग वहीं के वहीं बारूद के ढेर पे बैठे हुए। और दूसरी बात यह है कि किसी को भी आज दिन तक, जबकि हमारी 3 मुलाकातें इमरान खान से हुई हैं, बनिगाला में हुई, अदारा यूनिवर्सिटी में हुई, पेशावर में हुई, सबका जब इसकी सूबाई हुकूमत थी, लेकिन आज दिन तक हमें लोलीपॉप के सिवा कुछ भी नहीं मिला। हालांकि कल भी हमारी एरा वालों से मीटिंग थी, डीसी से थी, एसीओ से थी, एसी से थी। उन्होंने यही कहा जी कि बस 15 तारीख को, बस 10 तारीख को, अभी हम वो पीपीआई का करा रहे हैं, यानी कि प्राइवेट पार्टीशन कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, लेकिन करना कराना कुछ भी नहीं है। खुद हम तो यही अब दुआ कर सकते हैं कि खुदा इस हुकूमत से जान छुड़ाए। इसको धिकार मार के 16 सालों से जो हुकूमत आती है वो यही कहती है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये मदीने की रियासत है, इनके किए हुए सारे वादे झूठे निकल गए, हमारे इलाके की सियासत भी नाकाम है, हमारे एमपीए मने छुपे रहे कह रहे हैं, तो ये धिकार मार के। और हम नौजवान इत्तेहाद पावर के साथ हम हमेशा खड़े हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की उम्मीद है कि ये करेंगे, यहाँ पे भी तो काबज बैठे हुए हैं, इन काबज के खिलाफ कब आप ऐलान जंग कर रहे हैं? तो जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की आप बात कर रहे हैं, उनका भी मुझे लोलीपॉप ही लगता है, ये अवाम को लोलीपॉप ही दे रहे हैं। आप पीटीआई से वाबस्ता भी हैं, क्या आपको नहीं लगता कि पीटीआई के 3 साल गुजरने के बाद आइंदा आने वाले 2 साल हैं उसमें पीटीआई बेहतर करेगी या नहीं करेगी? कुछ लगता है आपको? मैं पीटीआई से वाबस्ता मुखालफ हुकूमत है, हम आवाज़ बुलंद करेंगे, एहतजाज करेंगे, और मुझे इस दफ़ा लगता है कि गवर्नमेंट के लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। नौजवान इत्तेहाद जो इस दफ़ा प्रोटेस्ट करेगी, उन्होंने इनको हर किस्म का टाइम दिया, मौका दिया, इन्होंने इस मौके का कोई फ़ायदा नहीं उठाया इंतज़ामिया ने। अब जो दम दमा मस्त कलंदर होगा तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मैं एक और चीज़ गोश गुजार करना चाहूँगा अपने नाजरीन के और आला हुक्काम के, कि जो नौजवान इत्तेहाद पावर पहले महदूद थी तहसील बालाकोट तक, अभी उसका दायरा कार वसी हो चुका है, ये डिस्ट्रिक्ट तक फैल चुका है, और कहीं ऐसा ना हो कि अगर इन लोगों के मसाइल हल ना हो तो इनको मजबूरन कोई ऐसा कदम उठा। मसाइल नहीं है, जैसा कि आपने सुना, यहाँ हर चीज़ का मसला है, हॉस्पिटल का हो, उसके अलावा अगर नादरा की बात की जाए उसमें, और लोगों बेरोज़गारी तो आम है, पाकिस्तान में बेरोज़गार हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ कोई इस तरह की फैसिलिटी भी नहीं है, रोज़गार की कोई सहूलियात नहीं है, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो बालाकोट सिटी में, अभी बालाकोट सिटी ज़लज़ला के बाद 16 साल गुजरने के बावजूद वहीं के वहीं खड़ी है, हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हुकूमती अहकाम से, आला अहकाम से, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से ये गुजारिश है कि जिस तरह डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में वो काम कर रहे हैं, इसी तरह वो बालाकोट सिटी को भी तरजीह दें, और बालाकोट सिटी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के मातहत लोग काम करते हैं उनको ये तलकीन करें कि वो डिप्टी अपने काम, डॉक्टर स्टाफ और बाकी जितना भी अमला है एक तरीके से काम करे, ताकि आने वाले टाइम में इन लोगों के मसाइल जो हैं हल हो सकें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो लोग जो हैं वो अपना हक जो है वो लेना जानते हैं, और वो प्रोटेस्ट भी करेंगे, आवाज़ भी उठाएं, बंदे की आवाज़ पहुंचती आगे तो ये सुनी भी जाती है, इस पर अमल भी होता है। तो मैं गुजारिश करूंगा तमाम आला अहकाम से बालाकोट सिटी पर तवज्जो दी जाए और यहाँ के मसाइल हल किए जाएँ। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, साथी रिपोर्टर मोहम्मद सरवर के साथ।